Yes, and we have started with the recording as well. Sairam to all of you. Today we will hold a discussion on democracy. This will be an open-ended discussion. You can talk about anything related to definition, related to systems, related to criticism, advantages, disadvantages, merits, demerits, or if you do not understand anything, just tell me that also. अगर आपको ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी बकवास है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे. So just keep your mind open and do not cut anybody in between. That will be quite rude. Just present your opinion and then we will keep moving that forward. All right. So I'll start with Shubham because he's the first one who asked for permission. Yes, Shubham. A system in which the government of a country is elected by people is called democracy. Okay. Anybody wants to elaborate this or find any faults in this? I'll just rephrase the question. The question will be like, is voting the only criteria to declare a place democracy? Voting तो तुम्हारे यहाँ भी होती है, but is it a democracy? Yes, Nakul. Ma'am, but the rights that given to the people for do things is a democracy. Acha. The rights given to people to do certain things form a democracy. All right. Can we elaborate on what kind of rights would you like to create a democracy? What are the rights that are important? कि भाई ये तो होना ही चाहिए. इस right के बिना this place cannot be called a democracy. Ma'am, right to equality. Right to equality. Yes. Anybody else? See, this is a very important and interesting topic. तो अब अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर मैं randomly pick करती जाऊंगी मुझे जिसका नाम दिखेगा. Fundamental rights. Fundamental rights. Fundamental right to equality comes under fundamental rights. Fundamental rights को थोड़ा सा और elaborate करो. Which are the rights which should absolutely be a part of fundamental right? Right to vote. Right to vote. Right to vote क्या तुम्हें right to vote दे दूं मैं? No, ma'am. किसे देना चाहिए right to vote? Right to equality. Above 18. Above 18 क्या above 18 हर किसी को देना चाहिए? No, ma'am. Above 18 people. नहीं, above 18 में भी क्या कुछ हमें उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि हर above 18 वाले को मौका दे दो कि हाँ तू भी जा वोट दे दे? देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं. पहली बात तो ये कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए. प्लीज बेटा जरा माइक म्यूट कर लो. यस, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए दैट एवरीबडी अबव द एज ऑफ 18 irrespective of caste, creed, gender, social economic background or everything should be allowed to vote. But at the same time, if a person who is 18 years old but not in control of his own mental faculties, by some people, they may grow up in age but they are not mentally competent to vote. You can't just go to that person कि नहीं तुम वोट दे सकते हो तो तुम जाके वोट दो. Or at the same time, if you bar somebody from not voting into an election, that also makes your country not a truly democratic one. केवल अगर हम वोटिंग की बात करें तो वोटिंग तो अगर 4 लोगों में हो जाए तो भी वो डेमोक्रेसी ही होगी. बट एवरीबडी शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स. यहाँ पर हम डेमोक्रेसी पर आ सकते हैं कि यस, अ ट्रू डेमोक्रेसी इज द वन which gives opportunity to everyone irrespective of their background. ठीक है, और कुछ इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हो? और डेमोक्रेसी के क्या डायमेंशंस हो सकते हैं? यस राजवर्धन बोलो. Ma'am, all the 6 fundamental rights: right to equality, right to freedom, right to against exploitation, right to freedom of religion, cultural and education right, and right to constitutional remedies. ठीक है, ऑल दीज आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. राइट टू इक्वालिटी की हमने एक तरीके से बात कर ली. राइट टू फ्रीडम की अगर हम बात करें तो द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्हाट यू फील. मैंने तुम्हें बोल दिया ठीक है तुम डेमोक्रेसी हो, बोल दिया तुम डेमोक्रेसी हो, लेकिन अगर तुम कोई ओपिनियन दे रहे हो उसको मैंने सीधे से मना कर दिया कि नहीं तुम दे रहे हो इसलिए मुझे नहीं चाहिए. सो दैट टेक्स अवे व्हाट योर राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. या फिर अगर मान लो इफ देयर इज समबडी हु डज नॉट बिलीव इन समथिंग,
अगर हम किसी चीज की बात करें कि चलो कोई ऐसा है जो इस चीज में विश्वास ही नहीं करता है कि हमें वोटिंग करनी चाहिए, और मैंने साफ बोल दिया कि नहीं 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 तुम कुछ नहीं समझते हो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करी जाए, इफ यू आर फोर्स्ड टू डू समथिंग दैट इट टेक्स अवे योर राइट टू फ्रीडम, इफ द No, राइट टू ma'am. द फ्रीडम, नहीं नहीं जाता क्या राइट टू फ्रीडम? Yes, ma'am. ऑफ कोर्स जाता है। सी, हम लोग कुछ चीजों को रिलेट कर सकते हैं बट इट इज नॉट ऑलवेज इन एन एब्सोल्यूट मैनर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द राइट टू द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आपको अगर कुछ गलत लगा, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आपको मौका ही ना दिया जाए कि आप उसे एक्सप्रेस कर सको। When we look in history, the regimes they have oppressed people on this particular thing only। जो प्रेस एक्ट्स लगा देते थे कि आप कहीं लिख नहीं सकते कि आपके साथ ये गलत हुआ, आप रिपोर्ट्स नहीं डाल सकते कि यहाँ पर ये क्राइम हुआ, क्यों? क्योंकि इट माइट मेक द गवर्नमेंट लुक बैड। इट हैज हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये चीज आपको जान के अजीब लगेगा कि जिन वेस्टर्न कंट्रीज को हम लोग इतना मानते हैं कि एडवांस्ड है, मॉडर्नाइज्ड है, इट हैज टेकन सेंचुरीज फॉर वुमेन टू गेन द राइट टू वोट। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन रेवोल्यूशन किसके लिए हुआ? जस्ट फॉर द मेन। व्हाट अबाउट वुमेन? आर वुमेन नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी? And when women tried to express, I do not think if we discussed Olympe de Gauche, when she started protesting against that, she was killed. कि ज्यादा बोलती है, उल्टी सीधी बातें करती है। So these kind of things they harm democracy. Democracy केवल वोटिंग करने से नहीं हो जाती है, कौन वोट कर रहा है। अब दूसरा डायमेंशन और क्या हो सकता है वोटिंग को लेके, और सोचो। ये तो हुआ कि कौन लोग वोट कर रहे हैं, अब आप किसे वोट दे रहे हो, क्या वो जरूरी है? एनीवन? कैसे? थोड़ा सा इलैबोरेट करो राजवर्धन। Ma'am, can I speak in Hindi? बिल्कुल, इरशाद। मैम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैम जो मैम डेमोक्रेसी है मैम, जिसको वोट देते हैं मैम, वो मतलब जैसे कि आप, मैं आपको समझा कैसे मतलब कोशिश जैसे करो, कोशिश करो। मैम जैसे कि मैम जिसको अपन वोट दे रहे हैं वो अपन को सोच समझ के दे रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए क्या करेगा, वो सबके लिए क्या करेगा, इसलिए अपन उनको वोट देते हैं। इसलिए जरूरी है वोट देना, ताकि लोगों में मतलब हुड़दंग ना मचे वगैरह। अच्छा ठीक है। मारा, डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? Yes, ma'am. डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस सर्टेन पॉइंट कि हम जिन्हें सिलेक्ट करते हैं, जिन्हें वोट देते हैं, क्या वो भी इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है तो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? मैम जो सामने वाला इलेक्शन में खड़ा हुआ है उसके हिसाब से हमें वोट देना चाहिए। मैम वो कैसा है, वो लोगों की किस टाइप से हेल्प करता है, उसने हमारे लिए क्या क्या काम किए हैं, और आगे जाके वो हमारी कैसे हेल्प करेगा। अच्छा ठीक है। स्वर्णिम, डू यू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस? But that's how the party work for us and how for economy of that country. अच्छा ठीक है, चलो एक ना मैं इसके अंदर एक थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ। अगर मान लो मैंने तुम लोगों के सामने दो कैंडिडेट खड़े करे और वो दोनों ही बेकार हैं, एक कुआं है एक खाई है, तो तुम क्या करोगे? और तुम नोटा। किसी नोटा मैंने दिया ही नहीं, तुमको मौका ही नहीं दिया नोटा का, तुम्हें जबरदस्ती वोट भी करना है, एक कुआं है एक खाई है, और तीसरे किसी को मैं खड़ा नहीं होने दूंगी, तो क्या मैम होगा इस कुआं। कंडीशन में? मैम कुआ। मैम कुआ कुआ कुआं। मैम कुआ से निकल तो सकते हैं मैम, खाई में तो फिर। अच्छा ठीक है, मतलब कि यू विल जस्ट ट्राई टू चूज द लेसर ऑफ द टू इविल्स, राइट? कि दोनों में से कौन कम खराब है आप उसे वोट दे दोगे, राइट? दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस, यस है ना? यस मैम। तो अगर मान लो सिचुएशन ऐसी है, तो कैन आई से दैट दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेसी? कि भाई ये तो मजबूरी हो गई ना कि एक गधा है एक खच्चर है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, फिर तो वही बात हो गई कि चलो देना है किसी को भी वोट दे देते हैं, अपना काम पूरा करते हैं। सो डज दैट फुलफिल्स द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी?
नो नो मैम। नो मैम। ओके, नो इट डज नॉट। ठीक है, और आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है कि वोटिंग तो हो रही है लेकिन डेमोक्रेसी डेवलप नहीं हो पा रही, या फिर केवल नाम की डेमोक्रेसी है? और सोचो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ना फ्लॉज निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज को हम डेमोक्रेसी समझते हैं क्या वो सही में डेमोक्रेसी है। अच्छा चलो थोड़ा सा वापस नॉर्थ कोरिया पे जाते हैं, कहाँ गया वो नॉर्थ पोल वाला? यही है, बताना बेटा, तुझसे ही शुरू करती हूँ मैं। नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है? एनीबडी कैन यू टेल मी? एनीवन? चलो देन आई विल आस्क। क्या नॉर्थ कोरिया का रिपब्लिक का सॉरी नेम? यस मैम। यस मैम। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और या जितने भी ह्यूमन राइट्स के रिपोर्ट है ना, इट सेज दैट नॉर्थ कोरिया इज द वर्स्ट कंट्री टू लिव इन। वहां पर देयर आर स्टेट सैंक्शंड हेयर कट, वहां पर केवल मेरे ख्याल से शायद 8 तरीके के हेयर कट है जो आप करवा सकते हैं फॉर एवरीवन। एंड वहां पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है फॉर 10 years. Every man is supposed to serve in the military for 10 years. And this is just me scraping the topmost layer of this thing. And the name is People's Democratic Republic of Korea. कहने को वो डेमोक्रेसी है लेकिन वहां पर तानाशाही चल रही है, कहने को तो डिक्टेटरशिप चल रही है। और एक और बहुत अच्छी सी चीज थी, लेट मी जस्ट रिकॉल दैट। रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी? Nilay, are you here in this class? Nilay? Yes, I can see you are in this class. थोड़ा बताओ जरा मुझे कि what is the difference between democracy and republic? In democracy, it is not everything that people can do, but in republic, everything is according to the people. Nope. Yes, Sumit, बताओ। Ma'am, in Republic, the supreme leader is chosen by the government, and in democratic, the leader is chosen by systems and by the people electing the common people. Okay, Rama, बताओ। Ma'am, in a republic, state, ma'am, the highest power is with the people and the elected representatives. And ma'am, in democracy, the whole system is with the elected representatives and the population of all the members who vote. अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझ में आया। मुझे ये बताओ, इंडिया डेमोक्रेसी है या रिपब्लिक है? रुकना, लेट मी आस्क समवन। हेमंत बताओ, इंडिया डेमोक्रेसी है या रिपब्लिक है? मैम डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। रिपब्लिक नहीं है? रिपब्लिक भी बोल सकते हैं मैम। बोल सकते हैं लेकिन है नहीं। मैम है, एक तरह से है भी मैम, है एक तरह से। रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया दोनों है। अच्छा कैसे कह सकते हो? जस्टिफाई। डेमोक्रेटिक यानी यहाँ पे हर चीज डेमोक्रेसी से होती है, इलेक्शन हर चीज के। और रिपब्लिक कैसे हुआ? रिपब्लिक कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, लेट्स आई आस्क समवन एल्स। ठीक है, कौन है? लेट मी सी द चैट बॉक्स। यस, श्याम बताओ। श्याम मैम इंडिया बोथ है मैम वो डेमोक्रेटिक भी है मैम और वो रिपब्लिक भी है। चलो इसको जस्टिफाई करो।
कैसे कह सकते हो कि डेमोक्रेसी भी है, रिपब्लिक भी है, कैसे? ओके राजवर्धन बताओ। मैम डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि मैम सारे काम यहाँ से डेमोक्रेसी से होता है। रिपब्लिक इसलिए क्योंकि अपना इंडिया पूरा फ्रीडम है। अच्छा रतिका बताओ। Ma'am, India is governed in a democratic parliament system, and ma'am, it has been federal republic since 1950. ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, एक मिनट। यस हेमंत, लेट्स गेट बैक एट यू। जो तुमने लिखा है जरा मुझे बोल के बताओ, नहीं खुद बोलोगे ना तो तुम्हें ही समझ में आएगा हाउ मच सेंस इट मेक्स। यस हेमंत। यस मैम। नहीं, जो तुमने लिखा है एक बार जरा पढ़ के बताओ तो। मैम वी आर रिपब्लिक बिकॉज वी आर रिपब्लिक, वी आर, हाउ कैन आई एक्सप्लेन? आई ट्राई इट इन एनी लैंग्वेज यू फील लाइक। अगर हिंदी में समझा सकते हो तो मुझे हिंदी में भी समझा दो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपसे समझने की। मैम हम रिपब्लिक हैं। अरे वो तो है, मैं पूछ रही हूँ कैसे हैं, क्यों हैं? Yes, Sumit, you want to add something? I mean, India is the biggest democratic country in the world. That's why it justifies that India is a democratic country. दोनों को जस्टिफाई करो, डेमोक्रेसी कैसे, रिपब्लिक कैसे है? मैम रिपब्लिक से डेमोक्रेसी विद सब 1950 के बाद बदली थी। चलो यस रामा बताओ। Ma'am, India is republic, ma'am, cause we have a fully entitled constitution, and which is to be followed by all the citizens of our country. Okay. Yes, Priyanshi. India is a republic country because we have a constitution. Okay. चलो, अगर आप लोगों की बहस खत्म हो गई हो, if there is anyone else who wants to add something, तुम ऐड करो, फिर मैं इस स्टोरी को आगे लेके जाऊंगी। I'm enjoying this seriously. Yes, Nakul, you also wanted to say something. Come on. No, ma'am. No, हो गया। और कोई कुछ कहना चाहता है? Yes, राजवर्धन बताओ। मैम दैट इज द डिफरेंस रिपब्लिक और डेमोक्रेसी। पढ़ के बताओ बेटा, ट्रांसक्रिप्ट नहीं जाती है वीडियोस में। रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and democracy is help how a government is run. अच्छा चलो, मैं तुम लोगों का ना बहुत एंटरटेनमेंट करूंगी। अगर इसको जानते हो तो ये तुम्हारी क्लास 9th की बुक है, एंड आई विल डू समथिंग जिसे आप लोग शायद मैजिक समझे। पेज नंबर 51। Page number 51 says it is explaining some terms. I'll just read out. I will not say anything else. I will just read out. Republic. The head of the state is an elected person and not a hereditary position. Democratic. A form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers, hold them accountable. The government is run according to some basic rules. कैसा लगा? मजा आया? For all those who participated in this debate, see, the basic idea is that republic means the head of the state. Who is the nominal head of our state? बताओ। President. President. It is not a hereditary position in our country. It keeps on getting changed. उसके लिए भी elections होते हैं। और democracy, when we are talking about democracy, talks about the way a government is run. तुम लोगों के जो तीर थे ना बहुत आसपास लगे।
बट क्या है, थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत थी. आई एम वेरी हैप्पी एटलीस्ट यू गाइज हैव ओपिनियंस. दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड. अच्छा चलो, अब मुझे एक एग्जांपल दो. तुम लोगों ने कहा जिस कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिपब्लिक हो जाती है. अच्छा, ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एनीबडी नोस कि ब्रिटेन के पास कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं? चलो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. ब्रिटेन ऑल्सो हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट ब्रिटेन इज नॉट अ रिपब्लिक बिकॉज देयर इज अ monarch. That is a hereditary position and she is the nominal head of the state. So that does not make it republic. She is also the head of state for Canada. She is also the head of state for Australia, and she is also the head of state of many small countries that I cannot remember right now. But Canada and Australia are the biggest ones. थोड़ा सा क्लियर हुआ आइडिया? रिपब्लिक वर्सेस डेमोक्रेसी. It is not necessary that a democracy has to be a republic. आप एक नॉमिनल हेड बना के उसे उसके काम करने दो, फिर भी आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है. ओके, और देखते हैं, शायद कुछ और इसमें रह गया जो मुझे डिस्कस करना था. आई गॉट कैरिड अवे. इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन. आई एम फाइनली फीलिंग हैप्पी. अच्छा, एक ही बात तो यहाँ पर और होती है, इसके अंदर ना एक डेमोक्रेसी को इसने समराइज करने की कोशिश करी. अकाउंटेबिलिटी, एक वर्ड मैं आपसे जानना चाहूंगी. व्हाट डू यू थिंक अकाउंटेबिलिटी मीन्स? एनीबडी नोस व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? यू कैन टेक हेल्प ऑफ गूगल, आई डू नॉट माइंड इट, बट आप जो भी बोल रहे हो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. And it's actually quite good now that I do not have to give you homework much. You can just do your homework right now, right here. So tell me, what do you mean by accountability? Anyone? Am I still audible? Yes, Rama, बताओ. थोड़ा सा explain करो मुझे. Rama, can you hear me? Yes. Aditi, you want to say something? I heard your mic pop up. बोलो बेटा, बोलो. मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किस तरीके से? थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें. अगर मान लो एज ए टीचर मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो क्या चीजें मेरी अकाउंटेबिलिटी में ऐड हो सकती हैं? मैम टीचिंग. टीचिंग तो चलो मेरा काम है, अगर मैं नहीं भी करूँ तो मैं उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ. यस नकुल, यू वांट टू से समथिंग? By mistake. By mistake it is sent. क्या ऐसी गलतियां मत किया करो. तो चलो बता दो, तुम्हें क्या लगता है एज ए टीचर मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द मेजर मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू. मैम जिम्मेदारी. हाँ वो तो ठीक है बेटा, पर मेरी क्या जिम्मेदारी है? सबसे जरूरी जिम्मेदारी क्या है मेरी? तुम्हें क्या लगता है? बच्चों को पढ़ाना. बच्चों को पढ़ाना, ठीक है. पूजित बताओ. Ma'am, to ensure that we got understand. केवल पढ़ाना नहीं, तुम्हें समझ में आया या नहीं वो मेरी ज्यादा जरूरी जिम्मेदारी है. शुभम. मैम नॉलेज देना. नॉलेज देना. देखो मैं तो यहाँ से नॉलेज की गंगा बहा दूंगी, उसके अंदर तुम अपना लोटा डुबा के नॉलेज ले रहे हो या नहीं, दैट इज योर चॉइस. अगेन राजवर्धन, टू मेक यू इंटेलिजेंट. अब देखो ऐसा है कि ना, आप कितनी ही कोशिश कर लो, हर किसी को आप एक लेवल तक नहीं जा सकते. There is cognitive ability in everyone. Some people understand things quickly, some people do not, and some people do not do anything at all. Yes, Rama. अरे यहाँ पर मत लिखो, मुझे बोल के बताओ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता बार बार. It becomes very tedious. Yes, Rama, बोलो. Ma'am, to make us understand and learn the major concepts. Okay. Yes, Shyam. Yes, Shyam. बेटा अपनी बात बोल के बताया करो.
I think he can't hear me. Yes, Sumit, बताओ. Ma'am, you are responsible for making us learn. अच्छा. You have a शुभम. responsibility. Okay, okay. Yes, शुभम. मैम आपको हमें इसके बारे में बताना है, आपके अनुभव के बारे में, आपने बचपन में क्या किया था उसके बारे में, जिससे हम आपकी बातों से सीख ले सके. तुम लोग खुद सोचो, आज से 10 साल बाद क्या तुम किसी को बता सकते तुम क्या करते थे 9th क्लास में? 10 भी नहीं, मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए हैं. क्या तुम किसी और को बता सकते थे कि मैंने 9th में ये किया है, तुम भी ये करो एंड देन यू विल सक्सीड इन लाइफ? But that was a nice input. Good. You know what I think? What is my primary responsibility? My primary responsibility is to create interest in you. What do you think about it? क्योंकि देखो, पढ़ते बच्चे खुद हैं. बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं होती है जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं. आपका इंटरेस्ट होता है, अगर आपका ध्यान होता है, सो यू कैन ग्रास्प एनीथिंग. कभी ट्राई करके देखना. सबसे बोरिंग सब्जेक्ट जो लगता है उसमें भी अगर बिल्कुल सोच के बैठोगे कि नहीं मुझे आज सब कुछ सीखना है, you will understand things in a better way. It's all you. Teachers just open the door. You have to walk through it. And it is my responsibility to show you, भाई वहाँ है, वहाँ जाओ, उसको पढ़ो, उसे समझो, कैसे भी करो. It can be your own method because everybody develops their own method to learn and understand things. How I understand things, I try to relate it to different concepts. And what my experiences are different from you, of course. So you can relate things with your experiences and then only you will be able to understand भाई ये कैसे, क्या, कब और क्यों हुआ. I like these discussions. We should do it more often. Anything else you want to talk about? I am done with the general discussion today. If there is anything else you wish to talk about, I am open to it. We still have a few minutes left in the class. Anyone? Ma'am, economics questions. Economics questions. अरे यार तुम ना अच्छे मूड में सवाल पूछ लेते हो. अगली क्लास में याद दिलाना, मैं भूल गई. I actually forgot. और अभी मेरे पास बुक नहीं है. अगली क्लास में मुझे पहले एक कोई इंसान मुझे मैसेज कर देना बिफोर द क्लास so that I'll just take out my book and make you mark the question answers. और कुछ? Anybody? अच्छा मुझे तो ये बताओ, चलो अब हम लोग ना अपनी खुद की रेटिंग लेते हैं. अभी तक हमने काफी सारी चीजें कवर करी. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, how interested do you feel in social science right now? Everyone. You can be honest. You do not have to please me or something. I do not take anything personally. Social science is a boring subject. I absolutely relate to that. Okay. Can you repeat, please? I said on the scale of 10, how much interest do you feel right now in social science? Everybody should write, don't worry. Are all of you done? Let me see. Okay. बेटा हम एसपीएल पढ़ते भी नहीं है, हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पढ़ते हैं. एसपीएल से तुम्हारा नाता टूट गया है.
All right. I have taken all your ratings under consideration, and I will try to make it more interesting from now on. See, feedback is always required. You can never just run your own show. अच्छा, आई थिंक हिस्ट्री में लोगों को काफी वो लग रहा है. चलो कोई बात नहीं, हिस्ट्री अगली बार हम और अच्छे से शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट इट विद द स्टोरी टेलिंग. Yes, there are few people I would like to talk about, and those are Sumit and Mukund. हाँ बेटा. Mukund Meena, can you hear me? Mukund? Did he leave the class already? Mukund, I can see that you are in the class. Just unmute your mic and talk to me. I want to ask you something. Mukund, can you hear me? Am I audible to everyone else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Mukund. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारे घर फोन करना पड़ेगा, याद रखना. मैम वो नहीं बोलेगा. क्यों नहीं बोलेगा? ऐसा क्यों? डर गया शायद. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा. मुझसे कोई ऐसी डरने की बात नहीं. मैं कहाँ डांटती हूँ तुम लोगों को? मुझे तो डांटना आता ही नहीं है. Yes, Sumit. Back to you. Yes, ma'am. What else can I do? Suggestions. Honest suggestions required. Which part exactly is making it so boring? वो गलती से रेटिंग हो गई थी. मैं तो 10 करना चाह रहा था. यहाँ से निकल के एक ना देखो, इतना ना डरना नहीं चाहिए. इफ यू फील समथिंग अबाउट दिस, जस्ट बी ऑनेस्ट कि नहीं समझ आ रहा, नहीं अच्छा लग रहा, बोर हो रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, क्योंकि मुझे पता है मेरे पढ़ाने में कोई कमी नहीं है. आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ओवर माई सेल्फ, बट एवरीबडी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट. भाई अगर हर किसी को एक कोई सब्जी तो पसंद होती नहीं है. इट डजंट मीन सब्जी खराब है. इट मीन्स कि उन लोगों को वो टेस्ट पसंद नहीं आ रहा, सो वी कैन ऐड समथिंग डिफरेंट इन दैट. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग फॉर योर सजेशंस. बोल दिया इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैडम तुमसे नाराज हो गई. अगर कुछ है तो सही में बता दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा. मैम सब्जेक्ट में कुछ पसंद ही नहीं आता. बहुत बोरिंग है. क्या? चलो तुम्हें बोरिंग लग रहा है. लिखना बोरिंग लगता है, पढ़ना बोरिंग लगता है, या डिस्कशन बोरिंग लगता है? मैम लिखना बोरिंग लगता है. अच्छा चलो ठीक है, इसके ऊपर तो हम बिल्कुल काम कर सकते हैं. हम आपको शॉर्टकट में लिखना सिखा सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके मैम. थोड़ा सा ना एक बार काम करना, मैंने जो ज्योग्राफी के नोट्स भेजे थे ना तुम लोगों को, एक बार उसे रिव्यू करना, ठीक है? उसमें देखना कि उसमें कितना शॉर्टकट मारा गया है लिखते टाइम, और एक बार कोशिश करना कि यू कैन ऑल्सो ट्राई टू मेक सच शॉर्टकट्स विद यू. तुम्हें पता है, ये देख रहे हो, ये पूरा ये एक पेज, ये क्लास 10th का पूरा चैप्टर है. बस ये इतना सा पेज. यस, ये पूरा क्लास 10th का चैप्टर है. वो तो 9th में क्या है कि बच्चे नए थे पिछले साल, सो आई हैड टू मेक लिटिल मोर डिटेल्ड नोट्स. ये पूरा 10th का चैप्टर है एक ज्योग्राफी का. अगर तुम उसे इतने में सब समराइज कर सकते हो तो कहाँ लिखना है भाई? कुछ नहीं लिखना है. आई नेवर कोरिलेट नंबर ऑफ वर्ड्स टू मार्क्स. सोशल साइंस में बस एक कीवर्ड होता है. अगर तुमने वो कीवर्ड मेंशन कर दिया 1 मार्क, दूसरा कीवर्ड मेंशन कर दिया 2 मार्क, तीसरा कीवर्ड मेंशन कर दिया 3 मार्क. I have given marks to people who have written just 5 points. 5 पॉइंट, और वो भी इतने से. मेरे ख्याल से उसने वो जो मेरा बच्चा था उसने शायद मुश्किल से 60 वर्ड्स लिखे होंगे, बट ही स्कोर्ड 5 out of 5 क्योंकि काम की चीज तो लिख दी. कौन बोल रहा है तुम्हें इधर उधर की कथा बाचो? कीवर्ड समझना चाहिए.
बेटा होता ऐसा है ना कि व्हेन यू मेक नोट्स योर ओन कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप्स, आपका खुद का दिमाग चलने लग जाता है। ये ना एक प्रोसेस है। अगर मैं बिल्कुल पका के तुम्हें खाना खिला दूंगी तो वो तो बस केवल एक बार खा पाओगे। अगर तुम खुद बनाना सीख लोगे यू कैन ईट इट ऑल योर लाइफ। थोड़ा काम करने की कोशिश करो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर सजेशंस, नो प्रॉब्लम। ये सारी चीजें सिखाना मेरा ज्यादा जरूरी काम है। कोर्स तो तुम लोग वैसे ही भाई की पढ़ाई से कर लोगे, मुझे मालूम है। Okay, so I think the time is up. This was a good class and we will cover the few points that we have left in this chapter. थोड़ा सा तुम पढ़ लेना क्योंकि अगर in case मैं भूल जाऊं तो हम लोग भी कुछ कर सके। Yes, Rajvardhan, you want to say something? No, ma'am. Pujit, you people suggested me that and I felt so bad looking at that channel. मुझे ऐसा लगा क्या कमी रह गई मुझ में जो बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, मुझसे नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं, बट अपनी अपनी चॉइस है। लाइक आई सेड, सबको अलग अलग तरीके का खाना पसंद होता है। मे बी यू लाइक दैट मोर देन मी, इट्स ऑल राइट। आई हैव टू डाइजेस्ट दैट and that will be all for today's class. I think you have another class and I will not take much more time. Thank you. Sairam. Saira ma'am.